مجھے اچھا لگتا ہے۔ وہ کہتا اکیلے بھی تو کھا سکتی ہو، اکیلے کھا لو، کیا حلق سے نیچے نہیں اترے گا جو میرے ساتھ ہی کھانا کھاؤ گی؟ مجھے دیر ہو جاتی ہے دوستوں میں نہیں آ سکتا، میں نہیں کھا سکتا آپ کے ساتھ۔ اگر آپ کو کھانا کھانا نا اکیلے کھا لو، میں نہیں کھاتا آپ کے ساتھ۔ ہاں، بار بار مجھے فون کر کے پریشان کرتی ہیں، کدھر ہے، آ جا، کھانا کھانا ہے، یہ ہے وہ ہے، پریشان کر کے رکھ دیا آپ نے مجھے۔ جب تک ماں باپ ہوتے ہیں تو ماں باپ کی اہمیت پتہ نہیں چلتی ہے۔ جب یہ بچھڑ جاتے ہیں تو پھر راتوں میں اٹھ اٹھ کے لوگ روتے ہیں۔ جن کے ماں باپ نہیں ہے ذرا ان سے جا کے پوچھیں ان کا حال کیا ہے۔ ابھی ہمارے ماں باپ ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی خدمت کریں، ہم ان کی سیوا کریں، ہم ان کا کہا مانیں، ان کی باتوں پر عمل کریں۔ جب یہ ہمارے درمیان نہیں رہیں گے تب ہمیں ان کی اہمیت پتہ چلے گی۔ ایک لڑکا تھا، پہلے گاؤں میں رہتا تھا، جب اس کی جاب لگی شہر میں، شہر چلا گیا۔ اس کی بوڑھی ماں تھی، باپ کا سایہ پہلے ہی اٹھ گیا تھا۔ بوڑھی ماں تھی اور وہ بیٹا تھا، صرف دو لوگ تھے۔ جب اس کی جاب لگی شہر گیا تو ماں گاؤں میں اکیلی رہ گئی۔ ماں ادھر اکیلی ہے، وہ شہر میں چلا گیا۔ اب اسے چاہیے تو یہ تھا کہ دو ماں بیٹے تھے تو شہر میں جب جاب لگی تھی تو ماں کو بھی شہر میں رکھتا، ماں کو بھی شہر لے جاتا، لیکن ماں کو گاؤں میں چھوڑ گیا، خود شہر چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد اس کا کام اچھا چلنے لگا، اس نے اور زیادہ کام بڑھا لیا۔ پہلے تو کبھی کبھی ماں سے بات کر لیا کرتا تھا، جب کام زیادہ چلنے لگا تو پھر ماں سے بات کرنے کی اسے فرصت نہیں ملتی تھی۔ دنیا بھر کے کام کرتا اسے فرصت مل جاتی، لیکن ماں سے بات کرنے میں اسے فرصت نہیں ملتی تھی۔ ماں کبھی کبھی فون کیا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی، بیٹا اگر تو شہر میں رہتا ہی ہے تو کبھی کبھی بات کر لیا کر، تیری بہت یاد آتی ہے۔ بیٹا تو ہی تو میرا ایک سہارا ہے، تو ہی تو میری زندگی ہے، تو اگر مجھ سے بات نہیں کرے گا تو پھر کون مجھ سے بات کرے گا؟ مجھے تیری بہت یاد آتی ہے۔ ماں اس طریقے سے جب بات کیا کرتی تھی، بیٹا کہتا ہاں ماں میں آپ سے بات کر لیا کروں گا۔ ایک دن ماں نے فون کیا، ماں کو اپنے بیٹے کی بہت یاد آ رہی تھی۔ ماں نے فون کیا، بیٹا تیری بہت یاد آ رہی ہے، تو گھر آ جا۔ تو بیٹے نے کہا ماں مجھے ٹائم نہیں ہے، میں ٹائم نکال کے گھر آؤں گا۔ کئی مہینے گزر گئے لیکن بیٹے نے ٹائم نہیں نکالا۔ پھر ماں نے کال کیا، بیٹا تو نے تو کہا تھا کہ تو گھر آ جائے گا، کئی مہینوں کے بعد میں پھر آج تجھے کال کر رہی ہوں، میں نے پھر آج تجھے کال کیا ہے، گھر آ جا بیٹا، میری طبیعت بھی خراب ہو رہی ہے، میں نے تجھے بہت دن سے دیکھا نہیں، تیری یاد آ رہی ہے۔ اس نے کہا ماں میں گھر آ جاؤں گا، آپ تسلی رکھو، میں گھر آ جاؤں گا، میرا کام ابھی بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے، میں بہت زیادہ بزی ہوں کام میں، ماں آپ بار بار فون کر کے مجھے پریشان مت کیا کرو۔ ادھر اکیلی ماں تھی، اس کا ایک ہی بیٹا سہارا تھا، اور وہی اس کو منع کر رہا ہے کہ ماں تم اب مجھے فون مت کرنا، اب مجھے فون مت کرنا، میرا کام بہت پھیلا ہوا ہے، آپ مجھے فون کر کے ڈسٹرب کر رہی ہیں۔ ماں نے ایک آہ کی سانس بھری اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کی خوشحالی کے لیے دعا کر دی۔ ماں کیا کرتی؟ ماں ماں ہوتی ہے۔ ماں ایک ایسا لفظ ہے، جب ماں بولا جاتا ہے تو دل میں سکون پیدا ہو جاتا ہے، دل میں ٹھنڈک آ جاتی ہے۔ ماں نے اپنے بیٹے کے لیے خوشحالی کی دعا کی کہ اے میرے بیٹے اللہ تجھے خوش رکھے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے پروردگار میرے بیٹے کو خوش رکھ، میرے بیٹے کو اور ترقی عطا فرما۔ ماں تو ماں ہے نا، اگر بیٹا ڈانٹتا بھی ہے، بیٹا لاکھ باتیں سناتا بھی ہے، لاکھ باتیں سننے کے بعد ماں پھر بیٹے کے لیے دعا کرتی ہے، ہاتھ اٹھا کے بیٹے کی خوشحالی کے لیے دعا کرتی ہے۔ ماں ماں ہوتی ہے یار۔ ماں نے دعا کی۔ اب ادھر ایک دن ایسا بھی آیا کہ ماں کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی۔ جب ماں کی زیادہ طبیعت خراب ہوئی تو گاؤں والوں نے، محلے والوں نے اسے ہاسپٹل میں بھیج دیا، ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا دیا۔ ہاسپٹل والوں نے کال کیا اس لڑکے کو، اس کے بیٹے کو کال کیا کہ تمہاری ماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، آپ آ جاؤ جلدی سے ہاسپٹل آ جاؤ، اب یہ بچنے والی نہیں ہے۔ جب اتنا بیٹے نے سنا تو وہ آیا، جب آیا ہاسپٹل پہنچا، ماں کے قریب گیا، ماں کے پاس آ کے کہا ماں کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ ماں نے کہا بیٹا میری طبیعت ٹھیک ہے، مجھے کچھ نہیں ہوا، لیکن افسوس بس اتنا ہے کہ کاش تو میرے پاس ہوتا،
काश कि अगर तू मेरे पास होता तो मेरा ये हाल नहीं होता। मैं तेरी मोहब्बत में तड़प तड़प कर आज मर रही हूं। अब मेरा आखिरी टाइम आ गया है। बेटे ने कहा, माँ ऐसा मत कहो। माँ का हाथ पकड़कर कहने लगा, माँ ऐसा मत कहो, आपकी बहुत लंबी उम्र होगी, आप बहुत लंबा जियोगी। माँ ऐसा मत कहो। माँ ने कहा, बेटा अब तू मुझे क्या तसल्ली देता है? जब मैं तुझे कॉल करती थी, जब मैं तुझसे बात करने का दिल मुझे करता था, मैं तुझे कॉल करती थी, तू मुझसे बात नहीं करता था। आज आखिरी टाइम आ गया है, अब माँ को तसल्ली देने आया है। अगर तू मुझसे बात करता, अगर तू मेरे साथ रहता तो आज मेरा ये हाल नहीं होता। माँ इतना कह के और उसने अपनी आखिरी सांसें गिनी और इस दुनिया से रुखसत हो गई। न जाने कितनी ऐसी माएं हैं जो अपने बच्चों के लिए तड़पा करती हैं। न जाने कितने वालिदैन ऐसे हैं जो अपने बच्चों के लिए, अपनी औलाद के लिए तड़पा करते हैं, लेकिन उनकी औलाद उन्हें नहीं समझ पाती। कि क्यों नहीं समझती? जब तक ये हैं तब तक इनकी अहमियत समझ में नहीं आती है। जब ये दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, जब ये दुनिया से चले जाते हैं, तब इनकी अहमियत समझ में आती है। फिर रेशम के तकियों पर भी नींद नहीं आती, रेशम की तकियों पर भी नींद नहीं आती। लोग कहते हैं काश के मेरी माँ वापस आ जाए, लोग कहते हैं काश मेरे वालिद वापस आ जाए, लेकिन जाने वाले फिर वापस नहीं आते। आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। क्यों रजा आज गली सुनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले। जो इस दुनिया से चले जाते हैं फिर लौट के नहीं आते। लोग तमन्नाएं करते हैं, ख्वाहिशें करते हैं, फिर रोया करते हैं कि काश के वो मेरे सामने होते, काश के मेरे माँ बाप आज मेरे पास होते तो हम उनकी खिदमत करते। जाने के बाद फिर अहमियत पता चलती है। अभी अगर आपके माँ बाप आपके पास हैं, आपके माँ बाप, आपके वालिदैन अगर अभी सलामत हैं, जिंदा हैं, तो उनकी कदर कर लो, उनकी कदर कर लो, उनकी खिदमत कर लो। क्योंकि जब ये चले जाएंगे तो तुम्हें बहुत याद आएगी। न जाने कितने ऐसे बच्चे हैं कि जब उनके माँ बाप उनसे बिछड़ गए तो आज वो उन्हें याद कर करके रोते हैं कि काश आज मेरी माँ होती, काश के आज मेरे वालिद होते। वालिदैन के चले जाने के बाद उनकी फातहा के लिए 50-50 डेगे बनाने वालों सुनो, वो इससे खुश नहीं होते हैं कि उनके जाने के बाद तुम 50 डेगे बना के लोगों को खुश करते हो। लोग ये ना कहें कि 40वें में, 30 में, 10वें में, 20वें में इन्होंने अच्छी फातहा खानी नहीं कराई, इन्होंने अच्छे पकवान नहीं बनाए। लोगों को क्या है, लोग कहते रहते हैं, लोगों की बात पर आप ध्यान मत दें। लोग क्या कहते हैं, क्या करते हैं, आप उस पर ध्यान मत दें। आप क्या कर रहे हैं, आप उस पर ध्यान दें। जब तक माँ बाप जिंदा हैं तो माँ बाप की कदर नहीं करते। माँ बाप जिंदा है, माँ बाप की देखभाल नहीं करते, कभी उन्हें अच्छी चीजें नहीं खिलाते। उनके चले जाने के बाद आज तुम 50-50 डेंगे बना के मोहल्ले वालों को खिला रहे हो, लेकिन कभी इस पर भी ध्यान दो कि जब तक तुम्हारे माँ बाप सलामत थे, क्या तुमने उनकी खिदमत की, तुमने उनकी ख्वाहिशों को पूरा किया? जो आज तुम 50-50 डेंगे बना के लोगों को खुश करते हो। तो अपने माँ बाप की खिदमत करो, अपने माँ बाप की कदर करो। एक ऐसे ही लड़का था, माँ की बात उसके पल्ले नहीं पड़ती थी। माँ उसे रोज कहती थी, बेटा देर रात घर मत आया कर, लेकिन वो क्या करता था, रात को निकल जाता था और बहुत रात में आता था। लोगों के साथ, दोस्तों के साथ पार्टी करता, दोस्तों के साथ रातों में घूमा करता। माँ उसे समझाया करती थी, बेटा ये गलत दोस्त हैं तेरे, इनके साथ रातों में मत जाया कर। दिन में तू कितना भी किधर भी जा, लेकिन रात में घर से बाहर मत निकला कर। जब ये रात में जाता था, थोड़ी देर के बाद जब माँ फोन करती थी कि बेटा तू किधर है, घर पे आ जा, रात में ज्यादा तेरा इधर उधर उठना बैठना अच्छी बात नहीं है, फोन कट कर दिया करता था। दोस्त पूछते, भाई किसका फोन है? कहता था ना, मेरी माँ का फोन है, उनको मेरी तरक्की पसंद ही नहीं है। मैं घर से बाहर निकलता हूं, फौरन मुझे कॉल आ जाता है, और बेटा घर पे आ जा, घर पे आ जा, रात में तेरा बाहर टहलना घूमना अच्छी बात नहीं है, दोस्तों के साथ उठना बैठना अच्छी बात नहीं है। दोस्तों से कहता था, मेरी माँ मुझे पसंद ही नहीं करती है। जैसे ही घर से निकलता हूं ना, माँ कॉल कर देती है, बेटा जल्दी आ जा, घर पे आ जा, बाहर मत जा। यार मैं परेशान हो गया हूं अपनी माँ से, बार बार मुझे फोन कर देती है। ऐसे ही कई दिन चलता रहा। एक दिन घर से बाहर गया, माँ ने फोन किया, बेटा ज्यादा देर हो गई है, घर पे आ जा। उसने माँ को इतनी बातें सुनाई, फोन उठाया, कहा माँ आज के बाद मुझे फोन मत करना, मैं घर पे रहूं, घर से बाहर जाऊं, कहीं भी जाऊं, तुम्हें इस बात की कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए।
माँ कहती थी बेटा मैं तेरे साथ में खाना खाऊंगी, तेरे साथ में खाना खाते मुझे अच्छा लगता है। वो कहता अकेले भी तो खा सकती हो, अकेले खा लो, क्या हलक से नीचे नहीं उतरेगा जो मेरे साथ ही खाना खाओगी? मुझे देर हो जाती है दोस्तों में, मैं नहीं आ सकता, मैं नहीं खा सकता आपके साथ। अगर आपको खाना खाना ना अकेले खा लो, मैं नहीं खाता आपके साथ। हाँ, बार बार मुझे फोन करके परेशान करती हैं, किधर है, आजा, खाना खाना है, ये है वो है, परेशान करके रख दिया आपने मुझे। अपनी जिंदगी जीने का मुझे कोई हक नहीं है, मैं दोस्तों के साथ रह नहीं सकता, दोस्तों के साथ कहीं जा नहीं सकता, दोस्तों के साथ खा नहीं सकता, दोस्तों के साथ टहल नहीं सकता, हर वक्त मुझ पे नजर है। घर से बाहर निकलता हूं फोन आ जाता है, बेटा घर पे आ जा। माँ ने जब इतना सुना ना, माँ के आंसू निकल आए, माँ के आंसू निकल आए। माँ ने उस दिन से फोन करना बंद कर दिया। रात में जाता, दोस्तों के साथ टहलता, इधर उधर उठता बैठता, वापस आ जाता। माँ ने जब उस दिन इसकी बातें सुनी ना, उसको अटैक पड़ गया, अटैक पड़ गया। जब अटैक पड़ा, माँ को हॉस्पिटल ले जाया गया, हॉस्पिटल में दवा दे दी गई, माँ वापस आ गई। लेकिन इससे सदमा बैठ गया, मेरा बेटा मेरी बात को अमल ही नहीं करता, मेरी बात को मानता ही नहीं, वो अपने दोस्तों की बात सुनता है। मैं उसे समझाती हूं उसके अच्छे के लिए, मेरा बेटा है, मैं उसके साथ खाना खाती हूं, मुझे अच्छा लगता है। मेरा ये मानना है, मेरा ये सोचना है, मैं अपने बेटे को अपने हाथ से निवाला उसके मुंह में रखूं, लेकिन उसे मुझसे प्यार ही नहीं है, उसे मेरी फिक्र ही नहीं है। ये माँ के सदमा बैठ गया। एक दो दिन माँ जिंदा रही, तीसरे या चौथे दिन माँ का इंतकाल हो गया। जब माँ का इंतकाल हुआ, मोहल्ले वाले, बस्ती वाले आते थे, लड़के को तसल्ली देते थे, चले जाते थे। एक शख्स आया पड़ोस का, मोहल्ले का, उसके हाथ में खत था। उसी लड़के को उसने खत दिया, कहा बेटा जब तेरी माँ जिंदा थी वो मेरी बीवी को ये खत दे के गई थी कि मेरे बेटे को मेरे मरने के बाद ये खत दे देना। उसने कहा अच्छा क्या है इसमें, ऐसा क्या है, लाइए मैं पढ़ता हूं। उसने जब वो खत खोला, खत को देखा, वो खत को पढ़ने लगा। उसमें लिखा था बेटा मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूं, बेटा मैं तेरा कभी भी बुरा नहीं चाहती। जब तू घर से निकलता है ना, मुझे फिक्र लगी रहती है कि तू रात को जा रहा है, पता नहीं तेरे साथ क्या हो जाए, तू किस हाल में वापस आए। मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे तेरे साथ खाना खाते अच्छा लगता है। मैं ये चाहती हूँ मैं अपने बेटे को अपने हाथ से निवाला खिलाऊं, अपने हाथ से उसके मुंह में निवाला रखूं। बेटा जब मैं मर जाऊंगी ना, तो तुझे बहुत याद आएगी मेरी, तुझे याद आएगी कोई मेरी माँ भी थी जो मेरे लिए तड़पती थी, तेरे लिए सिसकियां ले लेके रातों में रोया करती थी। माँ तुझे बहुत प्यार करती थी। जब तेरी शादी हो जाएगी, तेरी बीवी घर पे आएगी, और जब तेरी उससे कभी बात कोई हो जाएगी ना, जब तेरी लड़ाई उससे हो जाएगी, तब तुझे अपनी माँ की बहुत याद आएगी। तेरी माँ थी जो तेरे लिए तड़पा करती थी, तेरी फिक्र करती थी, तब तुझे रेशम के तकियों पर भी नींद नहीं आएगी। बेटा मैं जा रही हूं, मैं तुझसे बिछड़ रही हूं, लेकिन मेरी याद तुझे बहुत सताएगी। ना जाने कितने ऐसे बच्चे हैं, न जाने कितनी ऐसी औलादें हैं जो अपने माँ बाप की कदर नहीं करती, उनकी फिक्र नहीं करती, लेकिन जब ये बिछड़ जाते हैं, जब इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, तो फिर इनकी अहमियत उन्हें पता चलती है। तो क्यों ना जब ये जिंदा हैं, जब ये आपके सामने हैं, तब इनकी अहमियत समझो, इनकी कदर करो, इनकी खिदमत करो। आप घर से बाहर रहते हैं, इधर आपके माँ बाप आपके लिए तड़पते हैं, आप घर से बाहर काम करने के लिए गए, आप घर से बाहर हैं, आपको अपने माँ बाप से बात करने का टाइम भी नहीं मिलता, आपको अपने माँ बाप से बात करने का टाइम नहीं है। सबसे बात करने का टाइम है, दोस्तों से आप बात करते हैं, किस किस से आप बात कर रहे हैं, लेकिन अपने माँ बाप से बात करने का आपको टाइम नहीं है। इधर ये रातों में तुम्हारे लिए सिसकियां ले ले के रोते हैं, तुम्हारी कामयाबी के लिए दुआ करते हैं। दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो तुम्हें कामयाबियों की मंजिल पर ले जाए, लेकिन माँ बाप की ऐसी दुआ है कि इधर ये दुआ करते हैं और उधर दुआ कबूल हो जाया करती है। बच्चों के हक में माँ बाप की दुआ फौरन कबूल होती है। इधर रात में हाथ उठाते हैं तुम्हारे लिए, ऐ परवरदिगार, ऐ मेरे मौला, मेरे बच्चों को सलामत रख, मेरे बच्चों को कामयाब कर दे। आप समझते हो कि कुछ नहीं, सब ऐसे ही चलता है। माँ बाप की दुआओं में बहुत असर है। माँ बाप को कभी मत सताना,
माँ बाप से हमेशा अदब से पेश आना, माँ बाप से हमेशा उनकी खिदमत करना और हमेशा उन्हें टाइम देना। आप कितने भी कामयाब हो जाओ, आप कितने भी ऊंचे ओहदे पर चले जाओ, आप कितने भी बड़े हो जाओ, लेकिन माँ बाप को कभी मत भूलना। आप अगर बहुत अच्छे ओहदे पर चले गए हो, आपके माँ बाप अगर गांव में रहते हैं, आप शहर में बहुत ऊंचा ओहदा हासिल कर लिए हो, तो कभी भी अपने माँ बाप को मत भूलना। जाने कितने ऐसे बच्चे हैं, कितनी ऐसी औलादें हैं कि माँ बाप गांव में रहते हैं, ये इधर शहर में रहते हैं और ऊंचा ओहदा इनको मिल गया है, तो कभी अगर माँ बाप मिलने आते हैं ना, तो कभी भी अपनी पार्टी वाले लोगों के सामने ये नहीं कहते ये मेरे माँ बाप हैं। इन्हें शर्म आती है अपने माँ बाप को बताने में कि ये मेरे माँ बाप हैं, इसलिए कि इनकी पार्टी में इनका कहीं बकार ना कम हो जाए, इनकी कहीं इज्जत ना चली जाए, इसलिए कि ये गांव के हैं, ये पढ़े लिखे नहीं है। अरे तुम क्या थे, तुम्हारी हैसियत क्या थी, तुम्हारी औकात ही क्या थी, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पढ़ा लिखा कर इतना ऊंचा ओहदा दिलवाया। इनकी दुआओं का ये असर है कि तुम आज इस ओहदे पर बैठे हो, आज तुम इतने बड़े बन चुके हो, फिर तुम अपने माँ बाप को बुला रहे हो। अल्लाह ताला जब किसी को इज्जतें अता करता है तो ये भी याद रखना फिर उसकी इज्जतें जाने में टाइम नहीं लगेगा। तो हमेशा अपने माँ बाप को याद रखना, उनकी खिदमत करना, उनकी सेवा करना। अल्लाह ताला उनकी खिदमत की वजह से तुम्हें और ऊंचा मकाम अता फरमाएगा।